Start. Okay. Live होगा. Okay, okay. Okay, so very good afternoon to all of you. How is everyone? Am I audible and visible? Please let me know. Hello everyone. Good afternoon. Okay, so as you all know, today we have met to do all the amendments relating to CA intermediate law subject. Okay. Hello everyone. Yes, revision lectures के बारे में भी मैं बोलूँगी, but currently our primary focus is to first do the amendments of CA intermediate law, after which we will talk about the revision lectures. Okay. CA फाउंडेशन की लाइव क्लासेस जो है लक्ष्य लॉ की क्लासेस जो है दैट विल बिगिन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, दैट इज फ्रॉम जून. अभी करंटली मई के महीने में आपकी अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की और मैथमेटिक्स की क्लासेस होगी. लॉ की फाउंडेशन की लाइव क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम जून. ओके. आई एम गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू. Okay, so without wasting even a single moment, let us begin with the CA intermediate law amendments which is going to be applicable for May 2021 students. आपको ये बताने दो, you all are really very lucky. This is a very lucky batch because इस batch में there are hardly amendments which are to be studied. In fact, अगर आप देखोगे sections में एक्ट के जो सेक्शंस होते हैं उन सेक्शंस में एक भी अमेंडमेंट नहीं है. बट आप लोग जानते हो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं या लॉ पढ़ रहे हैं? हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं या लॉ पढ़ रहे हैं? व्हाट वी आर लर्निंग, व्हाट वी आर लर्निंग इज लॉ. और आप लोग जानते हो लॉ का क्या मतलब होता है? लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज. इस बार मई 2021 के लिए हमारा सब्जेक्ट का नाम ही आप लोग जानते हो, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. और लॉ का क्या मतलब होता है? लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉज. Fortunately for you are whom you all are those students who are going to give the attempt in May 2021. For you all, my dear friends, there are no amendments. There are no amendments in the Act, Companies Act 2013 में. In fact, आपको 4 Negotiable Instruments Act, Indian Contract Act, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, पांचों भी एक्ट्स में कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है. तो अब आप कहोगे कि मैम, ओ मैम, अगर एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं है तो आज हम यहां पे क्यों मिले हैं? दैट इज बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर सर्टेन वेरी 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 फ्यू amendments in the rules. और यही सारे रूल्स के जो अमेंडमेंट्स है वो करने के लिए हम लोग आज यहां पे मिले हैं. एंड यू नीड नॉट वरी, देयर आर हार्डली, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट नंबर, 1 2 3 1 2 3 4 5. There are only 5 amendments in rules. So let us begin with the first amendment, which is in chapter number 3 relating to prospectus and allotment of. I would request all of you all please to stop chatting now.
Sit straight like good children, your eyes and ears open, and you have to concentrate only on the amendments. मैंने इस टॉपिक को काफी इजी करने की कोशिश की है ताकि जब आप घर पे भी सेल्फ स्टडी करो, it will be really very easy for you all to apply this particular amendment and then learn the revised provision. Okay, it's just a personal request, a small request to all of you all. Just suspend whatever you all are doing and concentrate on these amendments. There are hardly 5 amendments which will not even take, I think, not even an hour for this particular amendment class. So please sit straight, eyes and ears open, suspend whatever you all are doing and only concentrate on these amendment part. Okay. Also, you all need not concentrate on the writing part. इसी अमेंडमेंट नोट्स की जो कॉपी है मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी है. सो व्हाट यू ऑल कैन डू इज लेटर ऑन यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन हैव योर ओन सॉफ्ट कॉपीज इफ यू विश टू, यू कैन ऑल्सो टेक आउट द प्रिंट आउट, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्सप्लेनेशन पार्ट. Okay, writing part is not necessary because notes are already uploaded below in the description box. Okay, अब सुनो मेरी बात. किसी ने पूछा मैम आर दीज अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2021? लेट मी टेल यू वन थिंग. अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हैं फॉर नवंबर 2021, all these amendments are already covered in the lectures that I have delivered to you. So आपको ये amendment lecture separately देखने की जरूरत नहीं है. It is only applicable for those students who have purchased my lectures applicable for May 2021 और earlier lectures. नवंबर 21 के अगर आपने लेक्चर, तो ये सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी अपडेटेड है आपकी बुक्स में भी और मेरे रिकॉर्डिंग्स में भी, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत. ओके, चलो आ जाइए. थैंक यू सो मच निशांत, थैंक यू. ओके क्षितिज, पहले हम लोग अमेंडमेंट पे कॉन्सेंट्रेट कर ले, लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट द रिवीजन क्लासेस. ओके, आ जाइए. और कितनी बार एक ही मैसेज भेजोगे क्षितिज? संभालो अपने आप को. आई नो योर एग्जाम्स आर ऑन हेड, बट संभालो अपने आप को. स्टार्ट मेडिटेटिंग. आ जाइए. Okay, so the first amendment is from chapter number 3, which is prospectus and the allotment of securities. Okay, chapter number 1 and chapter number 2 में कोई भी amendments नहीं है. So I'm directly coming to chapter number 3, that is prospectus and allotment of securities. उसमें आप लोग जानते हो there is a section relating to private placement. क्या आपको याद है या नहीं? क्या आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन नंबर, प्लीज टेल मी व्हाट इज द सेक्शन नंबर फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट. The PDF of these amendment notes is in the description of this video only. Very good. Nazmeen, Shreya, ये कौन है? Gift it now. Dhanraj, Aman, very good. Krishna, Mansi, अविरल, वेरी गुड. साइली, उमा, क्या बात है. अभिजीत, हिमेश, खुशी, निधि, यस. हिमांशी, आप सब लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है. प्राइवेट प्लेसमेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच इज इन चैप्टर नंबर 3. इसी प्राइवेट प्लेसमेंट में एक छोटा सा रूल का अमेंडमेंट है. मैं वापस से कहना चाहती हूं, देयर आर नो अमेंडमेंट्स इन द एक्ट. द अमेंडमेंट्स दैट आर देयर इज इन द रूल्स. सबसे पहली बात तो क्या आप लोग मुझे बता सकते, अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है अपनी सिक्योरिटीज का, पहली बात तो इवन अ प्राइवेट कंपनी कैन गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट, इवन अ पब्लिक कंपनी कैन गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट. आपकी कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाना चाहती है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट काइंड ऑफ रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड? कौन सा रेजोल्यूशन पास किया जाएगा अगर कंपनी को जाना है फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट? क्या आप मुझे बता सकते हो? प्लीज टेल मी. वेरी गुड. कामेश्वरी ने सबसे पहले एकदम सही जवाब दिया है और उसके बाद नाजमीन ने जवाब दिया है. वेरी गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, बोथ ऑफ यू ऑल.
सुनो मेरी बात, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाना चाहती है, इट हैज टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। बट आगे ही कहा गया है, आगे ही कहा गया है, क्या कहता है सेकंड वाला प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो ऑफ द रूल सेज, रूल नंबर 14 कहता है कि अगर आपकी कंपनी इशू करना चाहती है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, हां, अगर आपकी कंपनी इशू करना चाहती है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी इशू कर रही है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विद इन द लिमिट्स, विद इन विच लिमिट्स, विद इन द लिमिट्स विच आर बीइंग प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, तो आपकी कंपनी को एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन से बात बन जाएगी। थर्ड प्रोविजो कहता है, इसी का एक्सटेंशन है, कि अगर आपकी कंपनी जो है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करना चाहती है थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट, बट नाउ द अमाउंट ऑफ दीज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इज ग्रेटर देन द लिमिट्स एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, देन द कंपनी हैज टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, बट दिस स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। तो बार बार कंपनी को एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। वंस इन एन ईयर इफ इट इज पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, दिस स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी वैलिड फॉर ऑल द ऑफर्स और इन्विटेशन फॉर सच डिबेंचर्स ड्यूरिंग दैट ईयर। अब देखो इसी रूल 14 में अब क्या किया गया है, रूल 14 में नाउ देयर इज अ फोर्थ प्रोविजो दैट हैज बीन एडेड विच इज योर अमेंडमेंट, विच इज योर अमेंडमेंट। So basically there is an addition in this particular point. There is an addition in this particular point. And what is this particular addition saying? ये जो एडिशन है वो कहता है अगर आपकी कंपनी कोई भी सिक्योरिटीज तो देखो, अगर आप देखोगे सेकंड और थर्ड प्रोविजो में बात की गई थी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, बट ये जो फोर्थ प्रोविजो ऐड किया गया है विच इज एन अमेंडमेंट फॉर योर माय डियर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव द May 21 अटेम्प्ट, अगर आपकी कंपनी कोई भी सिक्योरिटीज इशू कर रही है, सिक्योरिटीज किसको इशू कर रही है, टू अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर QIB, तब आपकी कंपनी के लिए सफिशिएंट होगा इवन इफ इट इज पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड दिस स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी वैलिड फॉर अ कंप्लीट ईयर। अगर आपने आज एसआर पास किया है, नाउ विद इन 1 ईयर अगर आपने सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट किया है टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, आपको वापस से एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? हाँ, अमन ने, आई न्यू दैट दिस डाउट विल कम, अमन ने पूछा है मैम QIB तो इस सेक्शन में कवर्ड नहीं है। अमन सुनो मेरी बात, आपका कुछ मिसकंसेप्शन है। QIBs are not counted in the limit of 200. QIB and your employees are not counted in the limit of 200. But उनको आप private placement तो कर ही सकते हो ना? So if you are going for a private placement to qualified institutional buyers, you only have to pass a special resolution which will be valid for the complete year. वापस से सुनो मेरी बात, हो सकता है अमन ने जो डाउट पूछा है वो आपका भी डाउट हो। अमन पूछ रहा है कि मैम आपने जब सेक्शन पढ़ाया था आपने कहा था वो 200 की गिनती में आप QIBs को काउंट नहीं करते हो। जी हाँ अमन, जो आप कह रहे हो वो एकदम सही है, 200 की गिनती में QIBs are not counted, but they can always be given the securities of the company through a private placement. तो ये प्रोविजन उसी के लिए है, कहता है अगर आपने QIB को प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, you can do this by passing a single special resolution which will be sufficient for a complete year for all the allotments to be made to the qualified institutional buyers during that year. Getting this or no my dear friends? Yes or no guys? Yes. तो यही अमेंडमेंट मैं रीड करना चाहती हूं एंड देन वी विल मूव अहेड।
ओके, सो व्हाट इज दिस पॉइंट सेइंग? सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हो कि प्राइवेट प्लेसमेंट कैन नॉट बी डन टू मोर देन 200 पर्सन, और ये प्रोविजो जो है ये रूल नंबर 14 में ऐड किया गया है एज द फोर्थ प्रोविजो. 3 प्रोविजंस ऑलरेडी थे, फोर्थ वाला कहता है इट इज प्रोवाइडेड दैट एंड any offer or invitation made to a qualified institutional buyer, okay? Oh, एक मिनट, आपको लिखना पड़ेगा. आई विल जस्ट मेक यू ऑल राइट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन. ये तो पॉइंट दिया हुआ है कि आप 200 से ज्यादा लोगों को नहीं दे सकते हो, और 200 की गिनती में यहां पे लिखा हुआ है कि QIB और एम्प्लॉइज जो है वो काउंट नहीं होते हैं. ओके, अब मैं चाहती हूं कि आप लोग आगे और एक चीज लिखो. ओके, यहां पे प्लीज लिख दीजिए, यहां पे प्लीज लिख दीजिए, प्लीज राइट डाउन. आई एम डिक्टेटिंग यू ऑल व्हाट इज टू बी रिटन. Please write down the amendment, okay? In case of offer, in case of offer, in case of offer or invitation of any securities, in case of offer or invitation of any securities to qualified institutional buyers, to qualified institutional buyers, it shall be sufficient, it shall be sufficient, it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution, passes a previous special resolution only in a year for all the allotments, for all the allotments to such buyers during the year. तो अगर आप QIB के पास जा रहे हो, it will be sufficient if you pass a special resolution, and that too, this SR will be valid for a complete year. Getting this or no, my dear friends? Okay. I hope you all are done with the writing part. Please let me know in the chat box if you all are done with the writing part so that we can move ahead. It's written on the board. In case of offer or invitation of any securities to QIBs, it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only in a year for all the allotments to such buyers during the year. Okay? Yes, it is the fourth proviso. Okay? Chalo. Let us move to the next amendment. I think you all have done with the writing part. So, we will move to the next amendment, which is in the next chapter, which is chapter number 4, relating to share capital and debentures. Aapka favorite chapter, share capital and debentures. सबसे पहला amendment जो है, that is in the
in the rules relating to sweat equity shares. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है ये कौन सा सेक्शन नंबर है? मैंने स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़ाया था आपको जैसे ही मैंने इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट पढ़ाया था, क्योंकि सेक्शन 53 का एक्सेप्शन सेक्शन नंबर 54 है. क्या आपको क्लिक हो गया? मैंने आंसर दे दिया. नो बट आई थिंक मिस्टर पी के आर, उमा, किरण, श्रृंगी एंड अविरल, आप लोगों ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है. यस, द आंसर इज स्वेट इक्विटी शेयर्स इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 54. सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, the next amendment, okay, the next amendment is relating to the rules of section number 54. Section number 54, which was talking about sweat equity shares, which was talking about sweat equity shares. So what is the amendment in the sweat equity shares? आप लोग जानते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर करवा दिया था that there is no amendment in the section of sweat equity shares, but इसी के जो रूल्स थे उसमें कुछ अमेंडमेंट था. इसी रूल्स में बहुत सारी चीजें दी गई थी. देखो, अगर आपको याद होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स का रूल्स, लॉक इन पीरियड था, वैल्यूएशन था स्वेट इक्विटी शेयर्स का, लिमिट थी स्वेट इक्विटी शेयर्स की कि कितने स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन सी कैटेगरी की कंपनी इशू कर सकती है. इसी पर्टिकुलर लिमिट में देयर इज एन amendment. इसी particular limit में my dear friends there is an amendment. So what is the amendment in this particular provision? ये particular provision जो है वो कहता है कि अगर आपकी स्टार्टअप कंपनी है, अगर आपको याद होगा earlier the provision said कि अगर आपकी स्टार्टअप कंपनी है, हाँ, तो आपकी स्टार्टअप कंपनी इशू कर सकती है sweat equity shares. I hope you all remember the concept of sweat equity shares. What do you mean by sweat equity shares? Sweat equity shares वो shares है जो आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को एट डिस्काउंट इशू किए जाते हैं because they have provided a certain technical know-how or an intellectual property to the company. Usually these shares are issued at a discount or for a consideration other than cash. इसी के रूल्स कहते थे अ सर्टेन लिमिट ऑन द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा कैपिटल स्वेट इक्विटी शेयर्स का ही होगा. देयर इज अ सर्टेन लिमिट टू द नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स दैट यू आर इशूइंग. तो स्टार्टअप कंपनीज के लिए कहा गया था कि अगर आपकी स्टार्टअप कंपनी है, it may issue sweat equity shares which shall not exceed, can you tell me the amount which shall not exceed, my dear friends, 50% of the paid up capital of the company. Earlier it said that this was applicable for 5 years, but after the amendment अब माना गया है कि आप 10 years तक भी ये इशू कर सकते हो. सो बेसिकली हमने क्या किया है, स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया है और कह दिया योर कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप फॉर नॉट 5 years बट फॉर द इनिशियल 10 years. Getting this or no, my dear friends? So very good, my dear friends. Yashika and Nilaksh, very good. Yes. स्टार्टअप कंपनीज जो है दे कैन इशू, ओके, इफ दे विश टू दे कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स बट विच शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ दैट कंपनी अप टू 10 years. Up to, come on, tell me, 10 years. So this is the amendment which is covered in chapter number 4, share capital and debentures. Getting this or no, my dear friends? Let us read this provision. A very easy provision. 5 years के बदले substitute कर दिया है हमने 10 years. So देखो, in case of a startup company, it is provided that it may issue sweat equity shares not exceeding 50% of the paid up share capital up to 10 years. Earlier it was 5 years. Now it has been amended and replaced to 10 years from the date of its incorporation or registration. So this is the second
amendment that we have done. Now the third amendment, which is the favorite of our lawmakers, is the amendment relating to the section of debentures. आप लोग सब जानते हो हर एक अटेम्प्ट में debentures से रिलेटेड जो है वो अमेंडमेंट आता ही आता है. और अगर आपको याद होगा, एंड यू आर माई स्टूडेंट, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जहां पे यू हैड लर्न्ड all the rules relating to creation of debenture redemption reserve account as well as debenture redemption investment account. दो एस्पेक्ट्स होते हैं, इफ यू रिमेंबर. क्या तुम्हें याद है? पहली चीज जो है दैट इज कि कितना डीआरआर क्रिएट करना होता है. पहली चीज जो है दैट इज कितना डीआरआर क्रिएट करना होता है. और दूसरा एस्पेक्ट जो है दैट इज रिलेटिंग टू कितना डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करना होता है. क्योंकि देखो, रिजर्व क्रिएट करना इज अ मियर बुक एंट्री. मैंने जनरल रिजर्व कम कर दिया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बढ़ा दिया. यहां पे एक रिजर्व में से पैसा कम हुआ और दूसरे रिजर्व में पैसा बढ़ गया. बट देखो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिडीमिंग द डिबेंचर्स, वी डोंट हैव टू क्रिएट अ रिजर्व. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज we should have the liquidity to repay back the amount to our debenture holders. That is why simultaneously DRR के साथ साथ lawmakers ने rules में डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी प्रोविजंस डाले हैं, जहां पे उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं एज अ कंपनी यू ऑल्सो मेक सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स. यस माय डियर फ्रेंड्स, तो अब यही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बातें हैं वो मुझे आप लोगों को बतानी है. ऐसा कुछ चार्ट आपने मेरी क्लास में देखा होगा, और यहां पे जहां पे आपको NA नजर आ रहा है ना, दिस इज द अमेंडमेंट. ये देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हो, अगर आपकी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या अगर आपकी कोई बैंकिंग कंपनी है, अगर आपकी कोई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्लासिक एग्जांपल है नबार्ड. नबार्ड आप लोग जानते हो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या तो फिर एग्जिम, Export Import Bank of India. What are all these? These are all India financial institutions. अगर आपकी all India financial institution है या अगर आपकी कोई बैंकिंग कंपनी है, इन लोगों ने चाहे डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट किया है या डिबेंचर्स का पब्लिक इशू किया है, ना ही इन कंपनीज को डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत है, ना ही इन कंपनीज को कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है. इन्वेस्टमेंट याद है आपको कहां पे की जाती है? इन्वेस्टमेंट्स की जाती है इन शेड्यूल्ड बैंक्स एज फिक्स्ड डिपॉजिट्स, या तो की जाती है इन द सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, या तो की जाती है इन दो सिक्योरिटीज विच आर मेंशन्ड इन द इंडियन ट्रस्ट एक्ट. वहीं पे आपको ये सारा इन्वेस्टमेंट करना होता है. सेफ है एज वेल एज लिक्विड भी है. हम लोग इनको तुरंत डिसॉल्व करके हमारे डिबेंचर होल्डर्स के डिबेंचर्स जो है वो रिडीम कर सकते हैं. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? अलोंग विद दिस अगला पॉइंट जो था वो कहता था अबाउट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अगर आपका पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो वेदर प्राइवेटली और थ्रू पब्लिक इशू ऑफ योर डिबेंचर्स, एक्ट कहती है डीआरआर उतना ही क्रिएट होगा जितना एनबीएफसी को होता है, बट डीआरआई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. तो कितना एनबीएफसी को करना होता है? लेट अस चेक इट आउट माय डियर फ्रेंड्स. अब देखो, कैटेगरी 3 वो वाली कैटेगरी है जिसमें आया है एक अमेंडमेंट. कैटेगरी 3 वो वाली कैटेगरी है जिसमें आया है एक अमेंडमेंट. क्या कहती है कैटेगरी नंबर 3? अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, क्या है आपकी? एक लिस्टेड कंपनी, और यही लिस्टेड कंपनी इज अ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और एन एचएफसी,
and it has done a public issue, it has done a public issue of these debentures. उसको DRR create करने की जरूरत नहीं है, but yes, DRI it will create a 15%. Similarly, my dear friends, same to same, even if you are other than a listed company and you are going for a public issue, आपको DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट DRI विल बी ऑफ 15%. नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें आया है आप लोगों के लिए अमेंडमेंट. वो ये कहता है, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो ऑफ दीज डिबेंचर्स एंड यू आर नॉट एंड AIFI, यू आर नॉट अ बैंकिंग कंपनी, यू आर नॉट अ PFI, तो आपको ना ही DRR क्रिएट करने की जरूरत है, ना ही DRI क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. अगर आप नोटिस करोगे अर्लियर यहां पे कुछ अमाउंट्स थे, बट नाउ दीज फिगर्स हैव बीन रिमूव्ड एंड द अमेंडमेंट सेज you need not create a DRI. और एक आखिरी पॉइंट है जो बात करता है अनलिस्टेड कंपनीज के लिए. अगर आपकी अनलिस्टेड NBFC या HFC है ना एंड ना, बट अगर आपकी अदर अनलिस्टेड कंपनीज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू create DRR of 10% of the outstanding debentures and DRI of 15% of your debentures. So basically what you have to remember are these four figures, this 15, 15, 15 and 10. आप समझने की कोशिश करो, in group 2 accounts you also have a chapter relating to debenture redemptions. तो ये अमेंडमेंट जितना लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है इवन फॉर अकाउंट्स सब्जेक्ट. ओके, तो अकाउंट्स में जब कभी भी आप डिबेंचर का चैप्टर करते हो, आई थिंक इट इज इन एडवांस्ड अकाउंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज 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 मेक श्योर कि आप वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते वक्त इस अमेंडमेंट का ध्यान रखोगे. सो अलोंग विथ लॉ, दिस अमेंडमेंट ऑल्सो मेक्स इट इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस्ड अकाउंट्स इन ग्रुप 2. So make sure you are doing it and updating your knowledge even in advanced accounts. Okay. So सिर्फ ये याद रखना है, चार्ट आपने, अगर आप मेरे स्टूडेंट और बनाया होगा ये चार्ट, वहां के फिगर्स को कैंसिल करके वहां पे लिख दीजिए, अब DRI बनाने की जरूरत नहीं है. And if you are not my students, what you can do is you can just pause the lecture right now, मतलब later on you can do the copying stuff. Pause the lecture at this particular moment, make a note of this particular chart, क्योंकि अगर आप देखोगे एक्ट में काफी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में, रूल्स में काफी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में इस चीज के बारे में बताया गया है. इस चार्ट से अगर आप करोगे, इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू ऑल टू लर्न द फिगर्स. ओके, यू कैन पॉज इट, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट एंड देन यू कैन मूव अहेड. ओके, सो यहां पे मेरा डिबेंचर्स का अमेंडमेंट भी हो जाता है समाप्त. अब हम लोग बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट अमेंडमेंट is in the chapter of deposits, which is the next chapter, that is chapter number 5, acceptance of deposits by companies. आप लोग जानते हो कि हमने डिपॉजिट्स के चैप्टर में क्या किया था. डिपॉजिट्स के चैप्टर में हमने डिपॉजिट्स को डिफाइन किया था. हमने क्या किया था? डिपॉजिट्स को डिफाइन किया था. और इसी डिपॉजिट्स को जब हमने डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, डिपॉजिट्स को डिफाइन करने के लिए, okay fine, so debentures redemption is now in group 1 accounts. okay, that's great then. मतलब आप लोग तो अगर लॉ दे रहे हो तो अकाउंट्स तो ग्रुप 1 का आपको देना ही होगा. मतलब अब तो आपको और भी ध्यान रखना पड़ेगा और कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज डिबेंचर्स का चैप्टर तो आपके ग्रुप 1 अकाउंट्स में है. तो प्लीज रिमेंबर, इफ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ओके इन ग्रुप 1, you also have to make it sure
that you all are updating your knowledge relating to this reserve and investment in accounts. Okay. Next point. Next amendment is covered in chapter number 5 which is relating to deposits. आप लोग जानते हो deposits को define किया गया है और जब deposits को define करते हैं you all know that deposits have been defined in the negative manner. मतलब कहा गया है deposits includes any receipt of money. Okay, deposits includes any receipt of money by way of deposits or loan or any other form by a company, but does not include. फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आते हैं आपके कुछ 17 पॉइंट्स. तो आखिरी वाला जो पॉइंट है जिसको हम डिपॉजिट्स नहीं मानते हैं उसमें एक अमेंडमेंट आया है एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल अमेंडमेंट. व्हाट इज दिस अमेंडमेंट सेइंग? सो देखो, पहले तो लॉ मेकर्स ने कह दिया डिपॉजिट्स इंक्लूड्स एनी सम ऑफ मनी विच इज रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स और लोन्स बट इट डज नॉट इंक्लूड डैश 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 ऐसे करके 17 पॉइंट्स दिए. इसी 17th पॉइंट में माय डियर फ्रेंड्स देयर इज एन अमेंडमेंट. And what is this amendment talking about? Act कहती है okay, कि अगर कंपनी ने कोई भी अमाउंट रिसीव किया है और यही अमाउंट जो है अमाउंट ऑफ 25 lakhs okay or more is received by whom? A start up company. मतलब अगर आप रियलाइज करोगे वापस से जो है यहां पे आ चुका है स्टार्टअप कंपनी का अमेंडमेंट धीरे धीरे करके. इनफैक्ट लेट मी टेल यू विद इन 6 months और मैक्सिमम विद इन एन ईयर एक्ट में जहां कहीं पे भी स्टार्टअप कंपनीज के बारे में लिखा गया है हर जगह पे क्या होने वाला है, ये अमेंडमेंट आने ही वाला है. तो ये 17th पॉइंट जो है डेफिनेशन का जो एक्सक्लूड करता है कि ये सब डिपॉजिट्स नहीं है, वो कहता है कोई भी अमाउंट 25 लाख का या उससे ज्यादा अगर रिसीव किया गया है बाय हुम, बाय अ स्टार्टअप कंपनी and that too by way of a convertible note. तो आप लोग जानते हो convertible note मतलब क्या होता है? Convertible into what? Convertible obviously into the equity shares of the company. और अगर वो convert नहीं हो रहे then they will be repayable within a period not exceeding. Earlier it was 5 years but now it has been amended and said convertible into a period of 10 years from the date of the issue. So basically startup company को अगर 25 लाख या उससे ज्यादा मिला है, किस रूप में मिला है? By way of a convertible note. Now what is a convertible note? A convertible note is a note which is currently in the form of a debt. आज वो डेट के रूप में है बट कुछ समय बाद it will get converted into the equity shares of the company. और अगर आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवाना चाहते हो, what you can do is you can repay this amount and now this repayment has to be done. This repayment has to be done within a period of within a period of 10 years. So this is the amendment. So currently it says that this has to be repaid within a period of 10 years. Within a period of 10 years. Within a period of 10 years. So now any amount which is received by a startup company which is 25 lakhs or more
by way of a convertible note, and these convertible notes they can be repayable within a period of 10 years. 10 सालों तक अगर रीपेमेंट का पीरियड होता है और 25 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट आपकी स्टार्टअप कंपनी को मिलता है, इस अमाउंट को हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे. और अगर इस अमाउंट को हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे, इट विल मीन माय डियर फ्रेंड्स, डिपॉजिट के सेक्शंस इस पर्टिकुलर अमाउंट को अट्रैक्ट नहीं होंगे. Yes, obviously in a single transaction from a person. You want me to write that also? In a single transaction. So yes, very good Abhishek and Nilaksh. Good. Clear hai? Okay, let's see. So an amount of 25 lakhs or more received by a startup company by way of a convertible note, convertible either into the equity shares or repayable within a period not exceeding 10 years is the amendment from the date of the issue in a single tranche from a person. Getting this or no, my dear friends? और yes, startup company की definition जो है वो वही definition होगी as issued by the Department for Promotion of Industry and International Trade. Okay? और एक आखिरी अमेंडमेंट है, टाडा, और फिर हो जाता है खत्म, विच इज रिलेटिंग टू एनुअल रिपोर्ट. क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं एनुअल रिपोर्ट आपका फेवरेट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा सेक्शन नंबर है? बोलो. वेरी गुड उमा, क्या बात है. उमा की पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही है. वेरी गुड माय डियर चाइल्ड, बहुत आगे जाओगे. उमा, शिवानी, जयश्री, श्रृंगी, जैनम, अभिषेक, वेरी गुड. अविरल, मिस्टर PKR, ओहो. एनुअल रिटर्न का प्रोविजन आप लोग जानते हो. एनुअल रिटर्न का प्रोविजन वही चीज कहता है कि हर एक कंपनी को विद इन 60 डेज फ्रॉम द एजीएम सबमिट करना होता है एन एनुअल रिटर्न दैट इज MGT7 विथ द ROC. और उसमें बहुत सारे डिटेल्स लिखे होते हैं, जैसे कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, उसकी सारी मीटिंग, शेयर होल्डिंग का पैटर्न, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कोई पेनल्टी पनिशमेंट कंपनी को लगी है नहीं, कंप्लायंसेस, डिस्क्लोजर्स, और ये सारी चीजें जो होती है वो MGT7 में लिखी होती है. और कुछ कैटेगरी की कंपनीज होती है जिनको क्या करना पड़ता है, इसी एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई भी करना होता है इन फॉर्म नंबर MGT8, ओके, बाय अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी. दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 92 वाज टॉकिंग अबाउट. बट व्हाट इज द अमेंडमेंट इन सेक्शन नंबर 92? ये सारी चीजें तो दी गई थी, बट आगे कहा गया था, आगे एक्ट में कहा गया था, सेक्शन नंबर 92 में कहा गया था कि कंपनी जो है ना, कंपनी को क्या करना होता है. सेक्शन 92 कहता था अर्लियर, बिफोर द अमेंडमेंट, ओके, सेक्शन 92 कहता था अर्लियर, दैट इज बिफोर द अमेंडमेंट, कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने बोर्ड रिपोर्ट के साथ साथ, कंपनी अपने बोर्ड रिपोर्ट के साथ साथ अटैच करेगी एन एक्सट्रैक्ट ऑफ इट्स एनुअल रिटर्न. सेक्शन 92 कहता था कि बोर्ड रिपोर्ट के साथ साथ कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट जो है वो अटैच करना पड़ेगा. Simultaneously, there was another section under the Companies Act 2013 only, which was section number 134, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स के बारे में बात करता है, जो आप लोगों को सर ने, स्वप्निल सर ने पढ़ाया है, जो कहता था कि बोर्ड रिपोर्ट में आपको क्या करना होता है, सिर्फ वेब लिंक प्रोवाइड करनी होती है ऑफ योर एनुअल रिपोर्ट. सो बेसिकली 134 कहता था कि आपका एनुअल रिटर्न आप वेबसाइट पर अपलोड कीजिए,
और वेबसाइट पे अपलोड करने का बाद जो लिंक आता है उसी लिंक के बारे में आप बोर्ड रिपोर्ट में बता दीजिए। अब देखो दोनों भी चीजें बोर्ड रिपोर्ट और एनुअल रिटर्न्स से रिलेटेड ही थी, बट बोथ द सेक्शंस वर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर, दे वर कॉन्फ्लिक्टिंग ईच अदर। उन्हीं दो सेक्शंस को लाइन में लाने के लिए ये अमेंडमेंट आया हुआ है इन सेक्शन नंबर 92, और इसी अमेंडमेंट के बाद अब सेक्शन नंबर 92 कहता है बोर्ड रिपोर्ट के साथ आपको एनुअल रिटर्न के एक्सट्रैक्ट देने की जरूरत नहीं है। बोर्ड रिपोर्ट में आपको एनुअल रिटर्न की एक्सट्रैक्ट देने की जरूरत नहीं है। बोर्ड रिपोर्ट में अगर आपने वेब लिंक भी दे दी, आर यू एबल टू सी दिस? आई एम नॉट क्वाइट श्योर। बोर्ड रिपोर्ट में अगर आपने वेब लिंक भी दे दी ऑफ the annual return, it will be more than sufficient. So basically now after the amendment both these sections are in line with each other. अब दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं, दोनों में भी यही लिखा है कि आपकी एनुअल रिटर्न की जो कॉपी है इट शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, एंड ये जो वेबसाइट की वेब लिंक है ये वेब लिंक जाएगी इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। अब आप कहोगे मैम सपोज कोई कंपनी की वेबसाइट ही नहीं है, अगर कोई कंपनी की वेबसाइट नहीं है देन द अर्लियर प्रोविजंस विल कंटिन्यू टू अप्लाई, देन उस केस में आपको एक्चुअली एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट जो रहेगा वो अटैच करना पड़ेगा इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। सो दिस is all about the amendments for May 21 students. I think you all might have understood all the amendments. There is nothing that is complicated. Let us read this amendment. Come on. So, a company is now not required to attach an extract of the annual return with the board's report. आप क्या करोगे, सिर्फ वेब लिंक जो है वो डिस्क्लोज कर दोगे इन द बोर्ड्स रिपोर्ट एंड दैट विल बी सफिशिएंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दोज अमेंडमेंट्स। I would like to give you all certain tips for preparing for the examination. I'll try to conduct a test for you all. If there is any test that is going to be conducted for my inter students, I will update it to you all on my Telegram channel. Okay, तो Telegram channel जो है उसमें आप जो भी टेस्ट से रिलेटेड अपडेशंस रहेंगे उस बारे में मैं आपको बता दूंगी. Simultaneously you already know, कुछ समय पहले मैंने क्या किया था, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 50 का रिवीजन लिया था आप सब लोगों के लिए, और इसी पर्टिकुलर रिवीजन लेक्चर का लिंक भी इस वीडियो के नीचे दिया गया है. ओके, ये शायद से आई गेस 3 हफ्ते पहले मैंने ये रिवीजन लेक्चर लिया था, और उसी के बाद आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैम रिवीजन तो आपको लेना ही है बट साथ ही साथ प्लीज अपलोड अ सेपरेट अमेंडमेंट वीडियो, ताकि पहले हम अमेंडमेंट कर ले और फिर अपने हिसाब से हम रिवीजन लेक्चर्स देखते रहे. दैट इज द रीजन व्हाई आई केम अप टू यू ऑल टुडे. ओके, सो इफ यू ऑल हैव डन विद द अमेंडमेंट्स, आई वुड रेकमेंड कि आप सेक्शन 1 से 50 जो भी मैंने डिटेल रिवीजन लिया है, एकदम डिटेल रिवीजन, ये रिवीजन भी आप लोग कवर करें, इसको देख ले. उसकी लिंक जो है नीचे ही डिस्क्रिप्शन में दी गई है. प्लीज वॉच दिस लेक्चर. अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो वांट टू टेल यू ऑल वन मोर थिंग. जहां तक अदर लॉज की बात है, अदर लॉज में आपको 4 एक्ट्स होते हैं जिसका वेटेज 40 मार्क्स है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये चारों भी एक्ट्स जो है इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है. देयर आर नो अमेंडमेंट्स इन अदर लॉज. तो लास्ट अटेम्प्ट में जो मैंने रिवीजन लिया था फॉर अदर लॉज, उसी वीडियो को आप देख सकते हो. इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. ओके, इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज देर आर नो चेंजेस
in that particular topic. Changes जो थे hardly 5 changes थे, जिसके बारे में मैंने आपको already अभी बता दिया है. Apart from that, Companies Act में भी कोई भी changes नहीं है. Other laws में तो एक भी नहीं है. Companies Act में बस यही 5 changes थे, और ये पांचों के पांचों चेंजेस जो है आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू आईपीसीसी स्टूडेंट्स. सो अगर आप ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को ये चीज भी एप्लीकेबल रहने वाली है. ओके, यस, आप ओल्ड रिवीजन वीडियो देख सकते हैं फॉर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फॉर द आईओएस एंड ऑल्सो फॉर द जनरल क्लॉजेस एक्ट. उस वीडियो के कुछ 3 लाख से ज्यादा व्यूज है. कुछ समय में उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, बट यू कैन सर्च इट, यू विल कम टू नो अबाउट इट. ओके, यस, सीएसआर में भी चेंजेस है, उस बारे में सर आप लोगों को बताएंगे. ओके, CSR में जो चेंज है दैट इज बेसिकली इन द एक्टिविटीज विच इज गिवन अंडर शेड्यूल नंबर 7. एक काम करती हूं, मैं बता देती हूं आपको. आप लोग जानते हो आपका शेड्यूल नंबर 7 जो है वो किस बारे में बात करता है? दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर न्यू कोर्स स्टूडेंट्स, नॉट एप्लीकेबल फॉर द ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स. ओके, सुनो ना मेरी बात. शेड्यूल 7 इज टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटीज फॉर CSR. उसमें 2 पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 9, जिसमें एक चेंज है. पॉइंट नंबर 6 जो है वो बात करता था, एक मिनट, आई जस्ट रिमूव इट फॉर यू ऑल, जस्ट गिव मी अ मिनट. I am good, Chirag. Thank you so much. Thank you, Rishabh. सुनो ना, really sorry for the interruption. I guess there was some network issue, because of this the lecture was lagging. Okay, कुछ नहीं कर सकते, बट मेरे हाथों में नहीं थी वो चीज. सुनो ना मेरी बात. यही शेड्यूल नंबर 7 was talking about certain CSR activities. इसमें जो अमेंडमेंट आया है दैट इज इन पॉइंट नंबर 6. पहले जो था वो पॉइंट नंबर 6 कहता था measures if you're giving any money, okay, for the benefit of the armed forces, okay, then it is an CSR activity. But अब amendment के बाद ऐड किया गया है, even if you are giving any money to the widows or the dependents of the CAPF or the CPMF, that is the Central Armed Police Forces or the Central Paramilitary Forces, तो ऐसे केस में my dear friends this will also be a CSR activity. So basically 2 चीजों को ऐड किया गया है. अगर आपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस या तो सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस के डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग विडोज को पैसा दिया है, विल बी अ CSR एक्टिविटी. अलोंग विद दैट देयर इज ऑल्सो एन अमेंडमेंट इन पॉइंट नंबर 9. What is this point number 9 talking about? Contribution to incubators. So आप लोग जानते हो incubators are basically if you are providing infrastructure to startup companies, okay, उसी से related ये point number 9 था. Okay, तो अब इस point number 9 को हमने substitute कर दिया है by a new point. ओके, जो कहता है इफ यू आर प्रोवाइडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. तो सबसे पहली बात तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एन एजेंसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट.
उसी में हमने बी पॉइंट डाल दिया है जो बात करता है अबाउट कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी, जिसमें आयुष आयुष जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, ये सारे पॉइंट्स जो है उसको ऐड किए गए हैं। तो ऐसे करके 9th पॉइंट को जो है हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सो बेसिकली नाउ देयर आर 2 अमेंडमेंट्स इन शेड्यूल नंबर 7। पॉइंट नंबर 6 में जहां पे हमने क्या किया है, सीएपीएफ और सीपीएमएफ के डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग विडोज को अगर आप पैसा देते हो विल बी अ सीएसआर एक्टिविटी, एंड अलोंग विथ दिस माय डियर फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 9 को हमने 2 हिस्सों में ए और बी में डिवाइड किया है, जहां पे पहले ए वाले पॉइंट में रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कवर किया गया है और पॉइंट नंबर बी में पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज को कवर किया गया है। सो 9th पॉइंट टोटली सब्स्टिट्यूट हो चुका है। So these are also the amendments of the topic which Swapnil sir had taught to you. Apart from this, there is no amendment in the Companies Act 2013. Now quickly in 5 minutes, I want to tell you all certain things, okay, which you have to remember for the examination. Certain quick tips. सबसे पहली बात तो सुनो मेरी बात, ऑलरेडी मई जो है वो शुरू हो चुका है, तो सबसे पहली चीज जो आपको अब करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स इज दैट यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ स्टडी प्लान. You know, there is a very famous English proverb which says, if you fail to prepare, you are preparing to fail. अब आपको क्या करना है, एक स्टडी प्लान बनाना है और उसी स्टडी प्लान के हिसाब से यू हैव टू मेक इट श्योर कि आपकी पूरी पहली रीडिंग कब तक खत्म हो रही है, साथ ही साथ आप समझ लो आपका फर्स्ट रिवीजन कब हो रहा है, सेकंड रिवीजन कब हो रहा है, एंड यू शुड हैव एम्पल ऑफ टाइम ऑल्सो टू माय डियर फ्रेंड्स सॉल्व द पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स. जब तक आप खुद के लिए स्टडी प्लान नहीं बनाते हो, यू कांट स्टार्ट स्टडिंग एमलेसली. आपको देखना है कि लॉ के सब्जेक्ट में मेरा कितना हुआ है. चलो मेरा कंपनीज एक्ट हो चुका है, अदर लॉज में मेरा आईओएस हो गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया है, 2 एक्ट्स अभी भी पढ़ना है, नेगोशिएबल जनरल क्लॉजेस एक्ट. तो अब आप देखोगे कि नेगोशिएबल जनरल क्लॉजेस एक्ट को कितने दिन लगेंगे, कितने घंटे में और कैसे कैसे आपको इन एक्ट्स को कंप्लीट करना है. अकाउंट्स में कितना टॉपिक बचा है, सर अकाउंट्स में मेरा डिबेंचर्स का टॉपिक बचा है, उसके बाद टैक्स में मेरा पूरा का पूरा जीएसटी जो है वो बचा हुआ है, कॉस्टिंग में मेरा इतना बचा हुआ है. यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टडी प्लान एंड लेट मी टेल यू योर स्टडी प्लान शुड हैव एटलीस्ट 12 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी. अभी तो वैसे भी आप लोग घर पे, अनफॉर्चुनेटली फॉर यू ऑल, ऐसा भी नहीं है कि आपके बाकी के दोस्त घूम रहे हैं और आप घर पे बैठ के पढ़ाई करो. एवरीवन इज इन अ लॉकडाउन सिचुएशन, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम that you should be having for your studies. In fact, you should thank your parents that you were born in the year in which you are born, because आप खुद देखो कितना अच्छा है, आपको अमेंडमेंट्स भी बिल्कुल नहीं है. along with that देखो ना, ऐसा भी नहीं है कि आपके दोस्त जो है वो मस्ती कर रहे हैं और आप जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं. तो सभी के लिए क्या हुआ है, सेम सिचुएशन है. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ स्टडी प्लान. along with the study plan, my dear friends, please, it's a request, study at your study table only. जब कभी भी आप पढ़ाई करते हो, प्लीज स्टडी एट योर स्टडी डेस्क ओनली. आप बोलोगे मैम क्या छोटी छोटी बातों के बारे में डिस्कस कर रही है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस पॉइंट रियली मेक्स अ डिफरेंस. जब आप आपके बेड पे पढ़ते हो या से सोफा पे बैठे बैठे पढ़ते हो या डाइनिंग टेबल पे बैठते हो, इनिशियली तो आप पढ़ रहे हो, धीरे धीरे करके आप ऐसे थोड़ा लेटोगे, ऐसे लेटोगे, फिर ऐसे ही पूरा लेट जाओगे, बुक ऊपर रहेगी और कुछ समय बाद बुक नीचे और आपकी आंख लग गई. ये चीज नहीं होनी चाहिए. लेट मी टेल यू वन थिंग, जहां कहीं पे भी जो चीज करनी होती है वही चीज आपको करनी चाहिए. जब आप स्टडी टेबल पे बैठते हो, लाइब्रेरी तो खैर अभी बंद है, but when you're studying at the study table, the vibes, the positive vibes and the environment gives you more energy to study. आप समझो नेचुरली जब आप सोफा पे बैठते हो आपको टीवी देखने की इच्छा होती है, या जब आप बेड पे बैठते हो
योर सबकॉन्शियस माइंड गिव्स यू सिग्नल कि बेड जो है वो तो सोने के लिए, पढ़ने के लिए थोड़ी ना है बेवकूफ। सबकॉन्शियसली आपका माइंड आपको इंडिकेशंस देता रहता है कि बेटा पढ़ाई छोड़ो सो जाओ, या अगर सोफा पे बैठो बेटा पढ़ाई छोड़ो टीवी देखो, या डाइनिंग टेबल पे बैठो बेटा भूख लग गई, प्यास लग गई, जूस पीना है, नींबू शरबत पीना है। सबकॉन्शियसली आपका माइंड आपको बार बार ट्रिक करते रहता है। सो डोंट लेट दैट हैपन। स्टडी at your study table only. Along with that, which is most important especially in the time of corona, is have a healthy diet. Good food habit will give you a good health, and obviously it will give you more energy. Please avoid unhealthy eating habits. Don't order parcels from Zomato, Swiggy. ठीक है, कुछ महीनों की तो बात है। घर पे भी प्लीज तला तीखा खाना बंद करो। अननेसेसरली खांसी हो जाएगी, गले में इचिंग आएगी, तो लोगों को लगेगा आपको कोरोना है, एंड देन इफ यू गो इनटू दैट सर्कल यू विल लूज 15-20 days, एंड मेंटली जो आप हैरेस होगे आप पूछो ही मत। Simultaneously, it is summer time. Please drink plenty of water. Keep yourself hydrated. Have yogurt, दही लीजिए, छाछ लीजिए, पानी पीजिए, नींबू शरबत पीजिए. Have fresh juices. आम का रस पीजिए, लीजिए, but please keep yourself hydrated all the time. Along with that, maintain a proper sleep routine. और जो मैं स्लीप रूटीन की बात करती हूं, आई नो गर्मी का मौसम है, घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो, सभी के घर में एसीज है, बट स्टिल ट्राई अवॉइडिंग स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज यू नो आपकी जो एग्जामिनेशन होती है वो होती है दोपहर के 2 से शाम के 5 बजे तक। अगर आपकी हैबिट है दोपहर में सोने के लिए, प्लीज अभी से आपको आपका स्लीप रूटीन जो है बदलना होगा, एंड यू हैव टू मेक इट श्योर दैट यू आर स्लीपिंग अर्ली इन द नाइट एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड यू आर नॉट स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। अगर सोने की आदत है दोपहर में, अभी भी आपके पास समय है, वक्त आपके हाथों से निकला नहीं है, चेंज दैट हैबिट एंड ट्राई नॉट टू स्लीप इन द आफ्टरनून, अदरवाइज यू विल फील रियली वेरी ड्राउजी इन द एग्जामिनेशन टाइम। अभी कुछ नहीं लग रहा है, बट आप समझो जब वो 3 घंटे हो गए तब आपका माइंड आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा, और आपको बार बार ऐसे लगेगा मैं 10 मिनट सो जाऊं, मैं 15 मिनट सो जाऊं, 2 मिनट में सो जाऊं, और ये 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट आर द क्रूशियल टाइम ऑफ योर लाइफ, बिकॉज दीज 5 minutes are not going to cost you 5 minutes, but they are going to cost you 6 months of your life. 6 महीने अफोर्ड आप नहीं कर सकते। सो नाउ इज द टाइम, फ्रॉम टुडे स्टार्ट चेंजिंग योर स्लीपिंग हैबिट। इसलिए जानबूझ के मैंने अपना ये जो अमेंडमेंट क्लास था आफ्टरनून के समय में ही लिया था, बिकॉज आई वॉन्टेड यू ऑल टू स्टे अवेक। अभी से आप आपका रूटीन बदल दीजिए। ट्राई नॉट टू स्लीप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आवर्स, एंड दैट इज बिटवीन 2 to 5. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? अगर आपकी अभी भी फर्स्ट रीडिंग चालू है, अलॉन्ग विद दिस फर्स्ट रीडिंग, ओके, और जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, यू हैव टू रीड इन एंटायरिटी। एक भी टॉपिक आपका ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। खैर, मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को चार्ट बुक दी है, बट दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट माय स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर रीडिंग योर टॉपिक ऑल्सो साइमल्टेनियसली मेक ब्रीफ नोट्स, मेक शॉर्ट नोट्स, ताकि आपका सेकंड और थर्ड रीडिंग जो है वो शॉर्ट नोट से हो जाता है। लॉ इज अ सब्जेक्टिव पेपर प्लस इट इज अ थ्योरेटिकल पेपर, सो माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू डू थorough लर्निंग एज वेल एज रिविजन। और यही रिविजन प्रॉपर समय पे, रिविजन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, और यही रिवीजन सही समय पे होना चाहिए। सेम टॉपिक्स भी बार बार रिवाइज नहीं कर रहे, अदरवाइज इट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज ऑलरेडी चीज आती है। और साइमल्टेनियसली 2 रिवीजन के बीच में ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल टेंड टू फॉरगेट थिंग्स, बिकॉज माय सब्जेक्ट इज अ कंप्लीट theoretical subject. Along with this, your paper is not an objective paper जहां पे एक सवाल है, 4 गोले है, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और 6 महीने बाद अटेम्प्ट दे दो। ऐसा तो नहीं है। आपका पेपर सब्जेक्टिव भी है और थ्योरेटिकल भी है, तो आपको लिखना है,
तो इसलिए सही समय में आपका रिविजन होना चाहिए सो दैट you do not forget anything that you have learned. Next tip that I want to tell you all is plan the day of the plan the day before the examination properly. This is a very 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 important point क्योंकि आपके अकाउंट्स के पेपर के बाद आपको कुछ ही घंटे मिलेंगे, अगला पूरा दिन मिलेगा और लॉ के पेपर की दिन की सुबह मिलेगी. इसमें आपको कंप्लीट करने हैं पूरे 148 सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट, प्लस आपको करना है उसके साथ साथ 4 अदर लॉज. यू हैव टू प्लान दैट डे इफेक्टिवली. अभी आपका टाइम टेबल रेडी हो जाना चाहिए कि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले का अप्रोच आपका क्या रहने वाला है. सो दीज आर द जनरल टिप्स दैट आई वांटेड टू टेल यू ऑल for the examination. I hope आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चालू है. Stay indoors only. Don't afford, okay, to get infected by corona. It's a big risk that you are taking with your career as well as your life. Cases जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और आप लोग जानते हो इंडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है. People are not getting oxygen cylinders. They are dying waiting to get admitted to the hospitals. और वेट करते करते ही उनकी काउंटर्स पे हॉस्पिटल के बाहर डेथ हो रही है. And this is not a nightmare. It is a reality. You can see it on every news channel, everywhere. Whether you are in North India, South India, or Mid India, we are in a crisis. India is in a crisis, and we don't want to be a part of that particular thing. Stay indoors. Tell your family members to stay indoors. मस्ती बाद में हो सकती है. जितनी मौज मस्ती करनी है अपने घर वालों के साथ घर में बैठे बैठे ही कीजिए. अच्छे से पढ़ाई कीजिए. Stay happy always. जितना हंस सकते हो उतना हंसो, मुस्कुराते रहो. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे इंस्पायर्ड. थैंक यू सो मच. बाय बाय गाइस. लव यू ऑल. टेक केयर.